Good morning students. I am Babita Verma, your science teacher. This is the 9th class. Chapter is fundamental unit of life. This is the next part of this one. First is Golgi body. Golgi apparatus, also called Golgi complex and Golgi body. Golgi or apparatus is a cell organelle which also called Golgi complex and Golgi body. It discovered by Camillo Golgi. It bounded by the membrane filled with fluid in vesicle which parallel arrange called a cistern. This is a Golgi. This is a parallel structure of a Golgi. This is called cistern. Golgi membrane means all type of organelles covered with a membrane. ठीक है, तो Golgi covered with a membrane, it means this called a Golgi membrane. Tubular structure, these are called vesicle. Okay, so this is a part of this one. Next is, what is the function of this? It packages materials which synthesize in the ER. ER हमने कल पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिंथेसाइज होते हैं उनका पैकेजिंग का काम कौन कर रहा है? इट पैकेज मटेरियल्स विच सिंथेसाइज इन अ ER. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट फंक्शन. सेकेंड फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. गोल्जी फॉर्म लाइसोसोम्स. क्लियर? नेक्स्ट लाइसोसोम अपन पढ़ेंगे नीचे अभी. एंड थर्ड इज, इट हेल्प्स इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग. मेन फंक्शन ऑफ दिस वन, स्टोरेज, modification and packaging means which form in endoplasmic reticulum. These store in the Golgi body. Next is lysosomes. Lysosomes, these formed by the Golgi. Clear? So Golgi or lysosomes also called a waste disposal of cell. Why? This is one. Lysosomes, membrane bounded sac filled with digestive enzymes. मैंने कहा था ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन. सेम एज लाइसोसोम, मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक माने बैलून लाइक स्ट्रक्चर. दिस वन, ठीक है, राउंड शेप या अदर शेप हो सकती है. शेप लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम. डाइजेस्टिव का मतलब हम सब जानते हैं. डाइजेस्टिव मीन्स विच यूज फॉर डाइजेशन. जैसे इन योर स्टमक, डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द स्टमक फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. Same as digestive enzymes present in the lysosomes. तो if any foreign material, foreign मतलब बाहर से आया हुआ, if any foreign materials like bacteria or viruses enter in the cell, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है या वायरसेस हैं जो सेल में एंटर करते हैं, these are foreign material, ये हमारी बॉडी का नहीं है. ठीक है, दिस आर हार्मफुल. तो लाइसोसोम्स रिलीज एंजाइम्स एंड, तो these enzymes released by the lysosomes. तो lysosomes release enzymes and destroy them. किसे destroy कर देता है? उनको destroy करता है. ठीक है, and also help in removing of dead or old worn out cell organelles. जो cell organelles पुराने हो जाते हैं या dead हो जाते हैं उनको remove करने का काम भी कौन करता है? lysosomes ही करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आज वर्ड है suicidal bags. Lysosomes also called a suicidal bags because when cell gets damaged, lysosomes may burst and release digestive enzymes. When cell gets damaged means जब सेल नॉर्मली आपको पता है न्यू सेल्स फॉर्म इन योर बॉडी. ठीक है, आफ्टर सम टाइम तो नॉर्मली व्हेन सेल गेट्स डैमेज, ठीक है, तो लाइसोसोम्स में बस्ट. लाइसोसोम क्या करता है? बस्ट हो जाता है. ठीक है, तो लाइसोसोम्स में बस्ट एंड रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स. दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल. अपना सेल कोई क्या करता है? डाइजेस्ट कर जाता है. इसलिए सो लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, क्योंकि इसने सुसाइड कर लिया ना, अपने आप को फिनिश कर लिया, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड सुसाइडल बैग्स. अब नेक्स्ट इज माइट्रोकॉन्ड्रिया. दिस पोर्शन ऑलरेडी डिड इन लास्ट क्लास तो नेक्स्ट इज माइट्रोकॉन्ड्रिया. माइट्रोकॉन्ड्रिया आर रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर विच हैव डबल मेम्ब्रेन, just like this one. This is a mitochondria, this is a outer membrane and this is a inner membrane. Outer membrane have a pores, means outer membrane is a smooth membrane.
but inner membrane have a finger-like projections, finger-like structures called a cristae. Clear? तो अब आते हैं outer membrane have pores for transportation and inner membrane have finger-like structure called villi. क्लियर है यहाँ तक? तो आउटर मेम्ब्रेन है पोर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. क्लियर है? ट्रांसपोर्टेशन एंड इनर मेम्ब्रेन हैव अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर. ठीक है, क्रिस्टी वर्ड यूज करते हैं अपन इसको, क्रिस्टी. बट बिलीव दिस इज ऑलरेडी डिड इन लास्ट क्लास. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन डाइजेस्टिव सिस्टम स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो दीज आर कॉल्ड विली. तो यहाँ पर हम सेम एज उसमें हमने पढ़ा था प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया फॉर अ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. तो सेम एज यहाँ पर है प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया फॉर ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. अब नेक्स्ट आते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कॉल्ड अ पावर हाउस ऑफ द सेल. वाई दिस इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल? व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस वन? Mainly all cities have a powerhouse, ठीक है, for a distribution of the electricity. Same as mitochondria the powerhouse for a distribution of energy in a form of ATP. तो energy is stored in the mitochondria in a form of ATP, so it called powerhouse of the cell. Next आते हैं हम, what is the function of this one? Energy is stored in, आगे बढ़, energy is stored in mitochondria in a form of ATP, so it is also called a energy currency of the cell. Energy is stored in a mitochondria in a form of ATP, so ATP is also called currency of the cell. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम करेंसी मीन्स पैसा, जैसे अपन कहाँ रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं तिजोरी में. सेम एज ATP क्या है? दिस एनर्जी विच स्टोर इन माइटोकॉन्ड्रिया. Clear? So it means ATP also called energy currency of the cell. Next, the body uses energy stored in ATP for use all function of body, internal and external. It means the body uses energy stored in ATP. जो energy stored है in a form of ATP, this is used for all functions. All functions जैसे for example digestion, thinking, वर्किंग, एनी वर्क. ठीक है, एनी वर्क ऑफ बॉडी. इंटरनल जैसे मैंने कहा था डाइजेशन करना, ठीक है, या अदर वर्क्स हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं इंटरनली. तो एंड एक्सटर्नल जैसे हम मूव कर रहे हैं. क्लियर? तो ऑल टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म बाय द एनर्जी, और दिस एनर्जी प्रोवाइड इन अ फॉर्म ऑफ ATP बाय द माइटोकॉन्ड्रिया. थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स. माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है, ओनली माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हम आगे पढ़ेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड ओनली हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स. DNA मीन्स ओन जेनेटिक मटेरियल. तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ ओन जेनेटिक मटेरियल एंड हैव अ राइबोसोम्स. नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिड्स. दिस वर्ड प्लास्टिड, दिस इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. ये हम सब जानते हैं अच्छी तरह से कि प्लास्टिड्स ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. दीज हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स. पिगमेंट्स का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर. ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स. ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, दीज आर टू टाइप्स ऑफ basis of pigments. These are two types of, first is leucoplast and second is chromoplast. So firstly, what is the structure of the plastid? This is a structure of plastid. The plastid also have a two membrane, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, तो outer membrane is a porous and inner membrane this one. Stroma is a disc-like structure which present in the plastids, outer membrane and inner membrane. अब आते हैं ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट दिस अ टाइप ऑफ पिगमेंट्स या टाइप ऑफ प्लास्ट. these are colorless pigment present in starch, fat and protein. स्टार्च कहाँ देखा है हमने? स्टार्च इन राइस, स्टार्च इन पोटैटोज. तो दिस आर कलरलेस. तो ल्यूकोप्लास्ट
दिस इज अ कलरलेस पिगमेंट प्रेजेंट इन कलरलेस मटेरियल्स, कलरलेस ऑर्गेनल्स या कह सकते हैं कलरलेस मटेरियल्स ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब नेक्स्ट आते हैं क्रोमोप्लास्ट। दीज आर कलर्ड पिगमेंट्स, कलर्ड पिगमेंट मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉयलेट कलर, पिंक कलर, ठीक है, ब्राउन कलर। तो दीज आर कलर्ड पिगमेंट्स व्हेन ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दिस तो कॉल्ड अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हम लोग पढ़े हुए हैं, व्हेन ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट कॉल्ड अ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो इन प्लांट्स क्लोरोफिल हेल्प इन अ फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, विच प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, कलर्ड पिगमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्रूट्स